Hello, class 7. You all are warm welcome in your English class. Myself, Manali. I am your digital mentor. With me, you are going to study chapters of your book, English. Hope you all are excited to learn with me. Let's get started with very first chapter, lesson number 1, determination and persistence. So here in this chapter, it is talking about determination. Determination means बच्चों संकल्प and persistence. तो persistence means किसी चीज की ability जो हम उससे stick रह सके यानी कि दृढ़ता. So ये दो quality बच्चों हर students में होनी चाहिए. कौन कौन सी? Determination की और persistence की. यानी किसी चीज से हमें पूरी तरह से attach रहना है. जैसे determine and persistence towards our studies. This is a real life story of an engineer, John Roebling, building the Brooklyn Bridge in New York, USA back in 1870. The bridge was completed in 1883 and after 13 years. So in this story, it is a story of an engineer जिनका नाम John Roebling था, building the Brooklyn Bridge. और वो क्या build कर रहे थे? He was building the Brooklyn Bridge in the city New York, USA in the year 1870. ये ब्रिज कंप्लीट हुआ था बच्चों ईयर 1883 यानी कि 13 साल बाद. नाउ लेट्स गेट एंटर इनटू द चैप्टर. In 1870, a creative engineer named John Roebling was inspired by an idea to build a spectacular bridge connecting New York with the Long Island. 1870 में एक क्रिएटिव बच्चों इंजीनियर रहे जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जॉन, जो एक इंस्पायर, उनका एक आइडिया ने उनको इंस्पायर किया ताकि वो एक बहुत ही अच्छी, बहुत खूबसूरत स्पेक्टेकुलर ब्रिज बना सके कनेक्टिंग द न्यूयॉर्क विद लॉन्ग आइलैंड. However, bridge building experts throughout the world thought that this was an impossible feat and told Roebling to forget the idea. It just could not be done. It was not practical. It had never been done before. ठीक है. सो जो इनका आइडिया था जॉन का, बाकी के जो कंस्ट्रक्टर थे उनको लगा कि ये असंभव है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता. जॉन शुड ड्रॉप दिस आइडिया. जॉन को ये आइडिया ड्रॉप करना होगा. ये प्रैक्टिकल नहीं है. वास्तविकता इससे बहुत अलग है जो जॉन करना चाह रहे हैं और आज से पहले ये किसी ने भी नहीं किया. Roebling could not ignore the vision he had in his mind of the bridge. He thought about it all the time and he knew deep in his heart that it could be done. He just had to share the dream with someone else. After much discussion and persuasion, he managed to convince his son, Washington, an up-and-coming engineer, that the bridge, in fact, could be built. So, जो जॉन रॉबलिंग थे, उन्होंने सभी की बातों को इग्नोर किया क्योंकि उन्होंने एक डिटर्मिनेशन कर ली थी, अपने मन में एक दृढ़ संकल्प ले लिया था कि वो ऐसा ब्रिज बना के रहेंगे. उन्होंने हेल्प ली अपने बेटे, उनको कन्विंस किया, अपने बेटे को मनाया, वॉशिंगटन को, एंड कमिंग इंजीनियर, दैट द ब्रिज इन फैक्ट कुड बी बिल्ड. Working together for the first time, the father and the son developed concept how it could be accomplished and how the obstacle could be overcome. So, जॉन और उनके जो सन थे वो लोग पहली बार काम कर रहे थे इस कॉन्सेप्ट पे. सो दोनों ने पहली बार जब काम किया तब उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि कैसे इस चीज को अकम्प्लिश किया जाए, कैसे जो मेरे फादर ब्रिज बनाना चाह रहे हैं, कैसे उस आइडिया को हम लोग रियल में लाएं. Now turn your next page. With excitement and inspiration and the headlines of wild challenge before them, they hired their crew and began to build their dream bridge. बच्चों, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, इंस्पिरेशन थे, मोटिवेटेड थे क्योंकि उनको वो ब्रिज बनाना था जो उन्होंने अपने सपने में देखा था. The project started well, but it was only a few months underway. A tragic accident on the site took the life of John Roebling. Washington was also injured and left with a certain amount of a brain damage, which resulted him not being able to talk or walk. अब क्या होता है बच्चों? So there is a twist and turn in the story. So एक tragic accident होता है, एक हादसा होता है जिसमें जॉन रॉबलिंग की डेथ हो जाती है और जो उनका बेटा रहता है वॉशिंगटन,
वो भी इंजर्ड हो जाता है और वो भी अब उसके अंदर क्षमता नहीं रहती बोलने की और चलने की. We told them so crazy men and their crazy dreams, it's foolish to choose wild vision. अब सब बोलते हैं कि हमने बोला था उन लोगों को कि ये ड्रीम फालतू का है, ये ड्रीम क्रेजी है, और इसी वजह से उनके साथ ये हादसा हुआ. Everyone had a negative comment to make and felt the project should scrap since the Roebling were the only ones who knew how the bridge could be built. अब सबने सोचा कि अब ये प्रोजेक्ट यूजलेस है, ये प्रोजेक्ट स्क्रैप है, ये प्रोजेक्ट बेकार है. अब इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं रह गया है क्योंकि जो जॉन रॉबलिंग है और उनके बेटे वॉशिंगटन अब इस प्रोजेक्ट में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते बिकॉज जॉन रॉबलिंग इज नो मोर और उनका जो बेटा है नाउ ही इज नॉट एबल टू टॉक और वॉक. सो नाउ इट इज वर्थलेस, दिस प्रोजेक्ट इज वर्थलेस. अब ये ब्रिज कैसे बनेगा इसका आइडिया किसी को भी नहीं है. In spite of his handicap, Washington was never discouraged and still had a burning desire to complete the bridge, and his mind was still as sharp as ever. He tried to inspire and pass on the enthusiasm to some of his friends, but they were too daunted by the task. अब क्या होता है बच्चों, इतनी सारी निराशा होने के बाद भी जो वॉशिंगटन है, उनका जो करेज है, उनका जो साहस है, वो बिल्कुल भी कम नहीं होता है. उनको लगता है कि भले वो बोल नहीं सकते, भले वो चल नहीं सकते, लेकिन आज भी उनका दिमाग उतना ही शार्प है. उन्होंने लोगों के अंदर उत्साह भरने की कोशिश की, लेकिन जो लोग थे वो डरे हुए थे, घबरा गए थे, होपलेस थे. As he lay on his bed in his hospital room with the sunlight streaming through the window, a gentle breeze blew the flimsy white curtain after he was able to see the sky and tops of the tree outside just for a moment. So यहाँ एक सिचुएशन बताई गई है कि वो बेडरूम में थे, बेडरूम में सनलाइट उन पे पड़ रही थी, फिर अचानक से एक फ्लिम्जी व्हाइट कर्टन जो है, पर्दा होता है, वो हटता है बच्चों, और उन्हें क्या दिखाई देता है, उन्हें पेड़ दिखाई देता है, उन्हें आसमान दिखाई देता है, और वो इस मूवमेंट को देखते हैं. It seemed that there was a message for him not to give up. Suddenly an idea hit him. All he could do was move one finger, and he decided to make the best use of it. By moving this, he slowly developed a code of communication with his wife. So बेड पे लेटे लेटे उनके मन में ये ख्याल आया कि वो कभी भी हार नहीं मान सकते. He is never going to give up. अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आया. उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी वाइफ से अपनी फिंगर उठा के कुछ कम्युनिकेट किया. He touched his wife's arm with that finger, indicating to her that he wanted to call her engineers again. Then he used the same method of tapping his arm and tell the engineer what to do. It seemed foolish, but the project was underway again. अब क्या होता है कि वो इशारे से अपनी वाइफ को कुछ कहते हैं और कहते हैं कि मुझे इंजीनियर्स से बात करनी है. सो इंजीनियर्स उन्होंने बात की, अब काम जो है वो फिर से स्टार्ट हो गया था. बट इट वॉज क्वाइट वियर्ड कि इंजीनियर से वो किस भाषा में बात कर रहे हैं. For 13 years, Washington tapped out his instruction with his finger on his wife's arm. 13 सालों तक जो वॉशिंगटन थे, उन्होंने अपनी वाइफ के हाथ पे अपने फिंगर से सारे इंस्ट्रक्शन दिखे बच्चों, क्योंकि वो बोल नहीं पाते थे तो वो फिंगर से लिख लिख के इंस्ट्रक्शंस देते थे, इशारा करते थे. Until the bridge was finally completed, जब तक ब्रिज कंप्लीट नहीं हो गया. Today, the spectacular Brooklyn Bridge stands in its glory, a tribute to Trump of one man's indomitable spirit and determination not to be defeated by circumstance. अब क्या है बच्चों, आज वो ब्रिज बनकर तैयार हो गया था. 13 साल बाद वो ब्रिज बनकर तैयार हो गया था और आज भी वो ब्रिज है. और वो ब्रिज ये दर्शाता है कि अगर कोई भी इंसान कुछ भी चाले, दुनिया में हम कुछ भी चाले, वो असंभव नहीं है. बस हमें अपने मन में साहस रखना पड़ेगा, हमें डिटरमाइन होना पड़ेगा, हमें परसिस्टेंस होना पड़ेगा, परसिवरेंस रखना पड़ेगा उस काम को करने के लिए. It is also a tribute to the engineers and their teamwork and their faith in men who was considered made by half of the world. It stands too as tangible monument to love and devotion of his wife, who for 13 long years patiently decoded the message of her husband and told the engineers what to do. बच्चों, सो ये जो ब्रिज बना है,
ये केवल सिर्फ वॉशिंगटन की महान कहानी नहीं है कि उन्होंने कैसे डिटरमाइन होके कभी उन्होंने हार नहीं माना, वो कभी झुके नहीं, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनके साथ साथ उन वर्कर्स की जिन्होंने अपने बॉस का साथ दिया और उस ब्रिज को बनाने में हेल्प की, इंजीनियर्स ने। एंड स्पेशल थैंक टू हिज वाइफ, जो 13 सालों तक उनके इशारों को उन्होंने पेशेंटली सब्रता से सुना और लोगों को इंफॉर्मेशन दी, लोगों को इंडिकेट किए उनके मैसेज को इस सब्र से, पेशेंस से। So this was not the only contribution of a single person who has dreamed to build that bridge, that was John, but it was Washington, his wife, as well as engineer and workers who all together have done this impossible work. Perhaps this is one of the best example of never say die attitude that overcome a terrible physical handicaps and achievers as an impossible goal. इसीलिए बच्चों, हमें कभी भी किसी भी चीज के लिए बहाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। वॉशिंगटन वॉज हैंडीकैप, वॉशिंगटन हैंडीकैप होने के बावजूद उन्होंने अपने सपने को पूरा किया है। सो उन्होंने कभी भी अपनी विकलांगता को अपना बेचारापन नहीं बनाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे करूं, मैं तो हैंडीकैप हूं। उन्होंने सारी चीजों को साइड रख के वो सिर्फ डिटरमाइन थे अपने लक्ष्य, अपने गोल के प्रति। Often we face obstacles in our day-to-day life, or hurdles seems very small in a comparison to what many others have to face. The Brooklyn Bridge shows us that dreams that seem impossible can be realized with determination and persistence, no matter the odds are. So, बच्चों, हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनसे हम परेशान हो जाते हैं बच्चों, बट दैट आर नॉट रियल प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम में से कोई ऐसा है जो उससे भी ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उससे भी ज्यादा बुरी परिस्थितियों से अपनी लड़ाई से लड़ रहा है। इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स को कभी बहुत बड़ा नहीं करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को छोटा रखना चाहिए, बिकॉज देयर इज सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। सो इस स्टोरी से, ब्रुकलिन ब्रिज की स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि हमें सपना देखना चाहिए, हमें बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि अगर हम सपने देखेंगे, मोटिवेटेड फील होंगे, उन सपनों के ऊपर वर्क डाउन करेंगे, एंड दैट ड्रीम विल रिजल्ट इन रियल। So here is the meaning given you: persistence, continue firmly or obstinately in an opinion or action, especially despite obstacle, remonstrance, etc. मतलब किसी काम में लगातार लगे रहना। बच्चों, जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आप कभी भी हार मत मानो कि नहीं, हम ये चीज नहीं पढ़ेंगे। आपको लगातार प्रेसिस्टेंस दिखाना है, और अगर आप लगातार प्रेसिस्टेंस दिखाएंगे तो फॉर श्योर वन डे यू विल सक्सीड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Revise the chapter once again, do on reading, and I hope the story, the moral which we have learned from this chapter, you are going to follow in your life. Have a nice day. Take care. Bye-bye.